Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic factors affecting the state of equilibrium or factors affecting the direction of equilibrium. This is also known as Lee-Chatter principle, the very important topic of chapter 7 equilibrium of class plus 1. So first of all, what is Lee-Chatter principle? If a reaction or process in equilibrium state is subjected to change in concentration, temperature, volume, pressure, etc., then equilibrium will shift itself in such a direction that tends to undo the effect of change imposed. इसका मतलब क्या है कि यदि कोई रिएक्शन या प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेज में है और उस समय में हम उसके कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, प्रेशर एक्सेट्रा में कोई भी चेंज लेके आते हैं, भले उसे इंक्रीज करते हैं, भले डिक्रीज करते हैं, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन सच ए डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इंपोज्ड, जहां पर उस चेंज का इफेक्ट है वो अनडू हो रहा हो. This is called Lee-Chatter principle. So in this case, we will study total 5 factors. First is concentration, total 5 factors. Second is temperature. Third is pressure. Fourth is catalyst, and the fifth one is addition of inert gas. So these are the 5 factors which we will study under the Lee-Chatter principle. So first factor. There are total 5 factors. The first factor is concentration. So what is the effect of concentration? If we increase the concentration of reactants, then equilibrium will shift in forward direction. And if we increase the concentration of products, then equilibrium will shift in backward direction. कि हमारे पास and vice versa. Suppose कीजिए we are having a reaction A plus B. It is in equilibrium with C plus D. So in this reaction, A and B, these two are the reactants. C and D, these two are the products. So according to Lee-Chatter principle, if we increase the concentration of reactants, suppose कीजिए we are increasing the concentration of reactant, any of the reactant, either A or B. मान लो हम A या B दोनों में से किसी concentration को भी increase करते हैं, then equilibrium will shift in forward direction. तो equilibrium किस direction की तरफ shift होगा? Forward की तरफ, यानी कि ऐसे जाएगा. ऐसे जाने का मतलब क्या है? More amount of C and D will be formed. C and D का amount ज्यादा आएगा, यानी कि उस केस में C and D का amount क्या है? Increase करेगा. Then equilibrium will shift in forward direction. In same way, if we increase the concentration of products, यदि हम product concentration increase करेंगे, then equilibrium will shift in backward direction. It means if we increase the concentration of C or D, मान लो हम C या D दोनों में से किसी concentration को भी increase करते हैं, then what will happen? The equilibrium will shift in backward direction. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा. बैकवर्ड जाने का मतलब क्या होगा? अब जब बैकवर्ड जाना है तो उस समय में क्या होगा? ऐसे बैकवर्ड जा रहा है, दिस इज बैकवर्ड, देन मोर अमाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी फॉर्म. इट मींस ए एंड बी का अमाउंट ज्यादा होगा. तो याद रखिएगा, यदि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज तो बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा में उल्टा चलेगा कि यदि हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज में फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज में क्या होगा? बैकवर्ड. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज में क्या है? बैकवर्ड है. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज में क्या होगा? फॉरवर्ड. सो ये आपके पास है, इसे टेबुलर फॉर्म में भी बता रखा है. इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Decreasing the concentration of reactant, backward direction. Increasing the concentration of product, backward direction. Decreasing the concentration of reactant products, forward direction. और ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको A plus B का बताया.
अब हम यहां देखें एक सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं. Now, in this example, we are having a reaction N2 gas plus 3H2 gas that give 2NH3 gases. अब यहाँ क्वेश्चन क्या आते हैं कि if we increase the concentration of N2 gas or H2 gas or NH3 gas, then what will be the effect on the state of equilibrium? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या बताएंगे? If we increase the concentration of H2 gas, suppose पर हमें आ गया H2 gas concentration increase कीजिए, तो अब हम देखेंगे H2 यहाँ क्या है? This is the reactant. और अभी आपने पढ़ा भी है कि if we increase the concentration of reactants, then equilibrium will shift in forward direction. और फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या होगा? NH3 गैस का अमाउंट बढ़ेगा, so more amount of NH3 gases form. So this is our first factor. This is the concentration. Now the second factor is temperature. According to the Chapter principle, what is the effect of temperature? According to this principle, exothermic reactions are favored by low temperature. It means reaction is exothermic. Exothermic means energy is released. Then it is favored. Favored means forward side जाना by low temperature. It means exothermic reactions में यदि हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड साइड भेजना चाहते हैं तो टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा? लो. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर. इट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शंस है जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, दे आर फेवर्ड. वो फॉरवर्ड साइड कब जाएंगी? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर या बाय हाई टेम्परेचर. सो इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, डेल्टा एच नेगेटिव है इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर. जब एरो नीचे की तरफ है डिक्रीज, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ. और यदि उल्टा चले, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और एंडोथर्मिक में इसका उल्टा चलना है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड और इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड. यहां बता रखा है. अब इसके एक एग्जांपल से देख रहे हैं हम. तो आपके पास क्या एग्जांपल है देखिएगा. आप देखिए एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स 2 NH3 गैसेस. डेल्टा H is -92.3 किलोजूल. डेल्टा इज नेगेटिव, इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अब हमें यहां पर यदि पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तब क्या होगा? वी नो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो बैकवर्ड जाने का मतलब क्या होगा? NH3 गैस डिसोसिएट होगा, वो N2 और H2 बनाएगा. बैकवर्ड जाने का मतलब क्या होगा? N2 गैस और H2 गैस इसका अमाउंट इंक्रीज होगा. और वो इंक्रीज कब होगा? जब NH3 गैस का अमाउंट डिक्रीज होगा. इसका मतलब NH3 गैस डिसोसिएट होगी. सो मोर अमाउंट ऑफ N2 गैस एंड H2 गैसेस फॉर्म, या ये कहेंगे मोर अमाउंट ऑफ NH3 गैसेस डिसोसिएट. So this is the effect of temperature in this example. Now next example, third factor. Now third factor is pressure. Now what is the effect of pressure? Pressure का क्या effect है? If we increase the pressure, then equilibrium will shift towards lesser number of moles. मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. यदि हम वहां प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स. इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है. एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स. अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स 2 NH3 गैसेस. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. ये रहा 1, ये रहा 3. नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड टोटल है 4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और सेम वैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड. अब देखिए प्रोडक्ट हमारा NH3 है, उसके मोल्स टोटल कितने हैं? 2. यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है? 2. अब हम यहां देख रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर.
इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, कभी हमने पढ़ा इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 4, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, तो इसने कम की तरफ जाना है, इसका मतलब कम कौन सी तरफ जाना मीन NH3 वाली साइड जाना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन इन दिस केस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, आप देखिए फॉरवर्ड साइड में क्या है, NH3 गैस, इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ NH3 गैस विल बी फॉर्म। अब एक सेकेंड एग्जांपल देखें, अब हम सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर एग्जांपल है N2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स 2 NO गैसेस। अब आपसे पूछा इफ इट डिक्रीज द प्रेशर, कभी आपने पढ़ा यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर डिक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। आप जरा चेक कीजिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ये देखिए 1, ये रहा 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड भी टोटल कितना है 2। ये जरूर चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। इट मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों साइड इक्वल है तो प्रेशर इंक्रीज करे या प्रेशर डिक्रीज करे, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड शिफ्ट नहीं होगा। इट मींस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि किसी साइड भी कम या ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, दिस इज अबाउट प्रेशर। नेक्स्ट और फोर्थ फैक्टर इज कैटालिस्ट। सो व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट के बारे में आप जानते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा है द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट वास्तव में कैटालिस्ट ये नहीं है। कैटालिस्ट होता क्या है हमारे पास? A catalyst is a foreign substance which when added to the reaction mixture generally increase the speed of that chemical reaction without itself being consumed. It means catalyst है क्या है? It is a foreign substance, reaction में बाहर से डालते हैं, which when added to the reaction mixture generally increase the speed of chemical reaction. 99.9% केसेस में ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ाए। कुछ केसेस में ये रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, एंड दैट कैटालिस्ट आर कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। सो इसलिए हम वर्ड लिखेंगे जनरली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना खुद कंज्यूम हुए। इसका मतलब क्या है, यदि हमने एक रिएक्शन में 1 ग्राम कैटालिस्ट डाला तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 1 ग्राम का 1 ग्राम ही एज इट इज बाहर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट? A catalyst has no effect on the state of equilibrium. Catalyst का equilibrium के स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? Because it increases the rate of forward and backward reaction to the same extent in any reversible reaction. कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा उतना ही ये बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा देगा। एंड एट ऑल मोमेंट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हर स्टेज क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो विल से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग कैटलिस्ट। नो इफेक्ट ऑन द state of equilibrium by catalyst. Last factor is addition of inert gas. So what is the effect of addition of inert gas? Inert gases are the unreactive gases. So in this case there are two factors, two possibilities. First है addition of inert gas at constant volume, कि मीन हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कैसा क्या है? कांस्टेंट। सो इफ एडिशन ऑफ एनी इनर्ट गैस टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन वी विल से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड है एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन व्हाट विल हैपन? देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिएगा 2s2 गैस प्लस O2 गैस, 2s2 गैसेस। इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, 2 इसके हैं, 1 इसका है 3। प्रोडक्ट साइड टोटल कितने हैं? 2। तो यदि ऐसे केस में
if addition of any inert gas take place at constant pressure, तो उस समय में क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो ज्यादा मोल्स कौन सी तरफ हैं, आप देखिएगा बैकवर्ड साइड में, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। So these are the 5 factors which affect the state of chemical equilibrium, and this is all about Lee-Chapter principle. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.